discuss the features and what makes it different from the other, the very conventional kind test series programs that you are aware of, that we are also conducting, how it is going to help you out in making you realize what is the long-term strategy that you can take. Say for example, once the prelims result is out, it's a hard fact, it will be that many of us will not qualify. It will be a heartbreak, it will be a setback, but then you have to compose yourself and bounce back. So will you be wasting the complete full year just getting onto the revision of the prelims content? No. As I always say, this is a war and you are a warrior. You have to develop out a very strong, आपका अपना एक full proof plan होना बहुत जरूरी है. So this program is basically aiming at a creation of, it's aiming at generating consistency of answer writing with the topic wise references that we pick up. So if I have to talk about the basic elements or basic characteristics of answer writing, I am not here to discuss the syllabus. I am not here to discuss the nature of questions that have been asked in examination. I am basically asking you to understand what is the requirement of consistency of answer writing. You have to understand that. When I talk about this particular program, it basically is aiming at the orientation of it. Let me just put on that quickly before we get on to writing differences is what. So about this program, we subdivide our entire syllabus into 1 month cycle each topic. Say for the matter we have taken relief, geomorphology, climatology, we take up 1 month. Every week you are given 5 to 6 questions from that specified topic. So 5 to 6 questions you are getting. Minded, these questions will be all 10 marker, 15 marker and 20 marker as we get in our examination. So the first thing is that our entire syllabus is divided into the monthly blocks. We are charting out for every month, this will be the syllabus that we will be covering, and on the basis of that part of syllabus, you are given 5 to 6 questions every week. And once you take that into reference, at the end of every block, answer frame, detailed discussion with feedback sessions is what makes it highly customized. You need to understand that, say we have taken, I'll be talking about sample examples after taking up the features of this program here. If I take for example, we have selected geomorphology. I just pick up 2 topics for my reference. And say I have selected perspective. Perspectives in development of human geography, right? Now, what we do is we organize the syllabus. As in a particular month, we are dealing up with geomorphology or geomorphological questions. So, will it be that all geomorphology is what you need to plan out and prepare? You will say, no, it is not feasible. I am taking a long-term perspective of preparation. I must be given specification. I do agree to it. So what we do is, say we are dividing geomorphology into certain blocks like theories on hypogene processes, then hypogene processes themselves, then we add theories on epigene processes themselves, and then we can easily talk about applied geomorphology as our block.
So how I have organized my syllabus, think about it. Say supposedly some months we get 4 weeks, some months we get 5 weeks. So depending on that factor, we can certainly organize the things which you get a pre-planned schedule altogether. If I just continue with the sample, what are the theories on hypogene processes? Say we are dividing it into these 5 blocks. In a particular given month, largely we'll have 4 weeks. So say applied geomorphology is not getting the time. So we will be dividing it right there with these heads. But we'll be getting the 4 heads division by default. So if it is theories on hypogene processes, so you take continent drift theory, sea floor spreading, plate tectonic theory, yes all of us? While learning them, it's not theory, but it is by default covered. So we by default talk about geomagnetism plus paleomagnetism as we take the reference of preparation. I'm all set to write 5, 6, 7 questions this week. What are the topics that I'll prepare? I have got the topic which is not geomorphology. I have got the topic which is the snippet part of geomorphology. I mean, I'm not required to prepare even complete hypogene process. I have got a specification. Revise completely, whatsoever source you have. Revise completely what you have learned about continent drift theory of Alfred Wegener, how it is that Alexander Toit, Crusoe Wilson, Sir Edward Bullitt have significantly added to it. Once you are done with that, then you go to sea floor spread. You take the study given to us by Harry Hess, the conveyor belt concept, the zebra strip. You also apply plate tectonic theory. Do take mention of Wilson cycle, because Wilson cycle is an important constituent of plate tectonic theory. I not just need to be aware of what are the principal types of plate boundary, I need to be aware of the minor types. Accretional wedges, hotspot volcano, transform boundary. I get opportunity to revise all of them. And while attempting the questions, if I feel, no, I was not done with this particular head, and I was not very clear with the content, I have heard about it, but when it comes to writing 20 marker answer, 15 marker, I'm not getting, and I feel I'm not having sufficient content to write. So how to go about with it? As I said, at the end of every block, you get the entitlement to the answer frame. So I give you all the important bullet dimension. These were the requirement of this particular answer. So you automatically get what I call ready-made answer frame. You know that this is what was required to be written with all the possible major diagrams that you need to draw. So answer frame will come your way. We'll have a discussion just after completion of first block. Discussion wherein I give you myself that this was the question, this was the requirement of the answer, and if you have not done it, then you are by default. I will not miss out here. It's by default things are not written. When it is feedback session, you need to understand that you will have your evaluated answer sheet with you. So when you are having your evaluated answers with you, you can easily overlap, you can easily combine and judge. Okay, this was the requirement. I never gave a thought to it. I was aware of it, but at that given point in time, I could not recall. So I have to work out to basically make myself at ease. एक ऐसा क्लियर फ्रेम हर टॉपिक का, एक ऐसा क्लियर कंटेंट बिल्डिंग हर टॉपिक का, एक ऐसा कस्टमाइज्ड सीरीज ऑफ डायग्राम हर टॉपिक का कि आपके सामने वो क्वेश्चन आता है और आपके दिमाग में वो 3-4 डायग्राम फॉर अ 20 मार्कर क्वेश्चन या 2-3 डायग्राम फॉर अ 15 मार्कर क्वेश्चन और 1-2 डायग्राम फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन रेडीली क्रॉप अप करें, एक फ्रेम बड़े दिमाग ध्यान से बन जाए। इस तरह का फ्रेम बनाने से बेनिफिट ये होता है दैट यू जनरेट अ मेंटल इम्प्रिंट, और जरूरी है आंसर राइटिंग इज बेसिकली ऑल अबाउट इट. So at every end block, so block will be say geomorphology. Geomorphology for a month is divided into 4-5 sessions. Each session you are getting 5-6 questions. तो खुद से ही देखो ना, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेड, प्लेट टेक्टोनिक, जियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म, आपको 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं इन टॉपिक से किसी एक गिवन हफ्ते में, तो आपने तो सारे के सारे टॉपिक का कवरेज ले ही लिया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट.
कुछ भी नहीं छुपता, मतलब आप हिडन से हिडन टॉपिक को भी जस्टिफाई कर पा रहे हो। उसी के कंटिन्यूटी में अगर आपको एक और एग्जाम्पल दें, नोटिस करो ध्यान से, जब आपने थियरीज फर्स्ट वीक में कर ली तो आप उसके ऊपर बिल्टअप कैसे करो। हाइपोजीन प्रोसेसेस के बारे में बात करें, हाइपोजीन प्रोसेसेस के बारे में जब बात करते हैं तो आप डिफॉर्मेशन के बारे में बात करो। माइंड इट, जैसे डिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो माउंटेन बिल्डिंग और जियोसिंक्लाइन यहां पर अपने आप अटैचमेंट में आ जाएगा। तो हम ये आपको बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये टॉपिक तैयार करनी है। उसके बाद आप लोगे वुल्केनिज्म, और उसके बाद आप लोगे अर्थक्वेक। और मेरे ख्याल से कहने की जरूरत है ही नहीं कि अर्थक्वेक लिया तो सुनामी जो सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है तो उसको तो प्रिपेयर करते ही हैं, अर्थ्स इंटीरियर्स को भी ले लेते हैं। Are you understanding this particular training program in answer writing becomes so specific? क्योंकि मेरे पास टाइम बेनिफिट है ना। अब इस साल 2022 का मेन एग्जामिनेशन और आज में कितना टाइम का डिफरेंस है। आप बिल्कुल एट दी निक ऑफ द टाइम में एग्जामिनेशन देने के लिए होपफुल हो, तो आपके पास इतना बड़ा स्कोप थोड़ी है कि आप पूरा साल अटेम्प्ट करो। अगर आप गॉड फॉरबिड नहीं क्लियर करते प्रीलिम्स, या आपने अभी से तैयारी शुरू करी है, या राइट एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम, या डन विद योर सिलेबस एंड यू वांट टू जनरेट कॉन्फिडेंस ऑफ द आंसर राइटिंग, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। इससे आपको एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रिदमिक, एक आपके लिए क्लियर डेडिकेटेड प्रोग्राम हो गया जिसमें आप लगातार हर वीक, हफ्ते दर हफ्ते अपनी इंप्रूवमेंट खुद ही नोटिस करोगे, जहां पर आप आंसर लिखने के लिए encouraged होगे, because you know that okay, this was the thing that I done and these were the points that were missing, these are the things that I need to incorporate, I'll try to do that in the subsequent. तो हर टॉपिक को सब डिवाइड करके चलने का ये बेनिफिट मिलता है। अब उसी तरह से अब हमने 2 सैंपल टॉपिक्स लिए आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। डेफिनेटली सारे सिलेबस का ऐसे ही डिवाइड होगा, आई डोंट नीड टू टेल यू दिस। उसके बाद हम थर्ड ब्लॉक ले लें, हम ऐसा करते हैं इसको नंबर में डाल देते हैं। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था हाइपोजीन थ्योरीज, सेकेंड ब्लॉक हुआ हाइपोजीन प्रोसेसेस, थर्ड ब्लॉक हो गया एपीजीन थ्योरीज। तो एपीजीन थ्योरीज में फंडामेंटली हम क्या लेते हैं, डेविसियन कंसेप्ट, पेंक्स कंसेप्ट, एलसी किंग्स कंसेप्ट। एक्चुअली हम सारे जियोमॉर्फिक साइकिल के कंसेप्ट और स्लोप डेवलपमेंट कंसेप्ट्स की बात करते हैं। मतलब यू टॉक अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स दैट गोज विद एपीजीन प्रोसेसेस, whether because these are the 3 scholars that are overcasting, so हमने इनका नाम लिख दिया। Otherwise, when I talk about geomorphic cycles, we definitely can incorporate Peltier's cycle of periglacial topography, Beeden-Wittig cycle of karst topography, so you can add them, but these are the principal names so I have written. So say थर्ड वीक में आप एपीजीन प्रोसेसेस के जो थियरीज हैं, जो कंसेप्ट हैं, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है, कंसेप्ट ऑफ पेडिक्लिनेशन है, स्लोप डेवलपमेंट अप्रोचेस है, उनको रिवाइज करते हो। उनको रिवाइज करके फिर आप जज करते हो कि आपको अगर लिखने के लिए बताया गया तो आप कितना लिख पा रहे हो, आप कितना क्वेश्चन को डिसाइफर कर पा रहे हो। आपने क्वेश्चन को डिसाइफर करा, कितना टाइम लिया आंसर फ्रेम करने में, आपने आंसर फ्रेम किया, कितना टाइम लिया उसको लिखने में। वर यू इन द पोजीशन ऑफ कंप्लीटिंग 10 मार्कर क्वेश्चन को पढ़ना, फ्रेम करना और लिखना 7.5 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए विद डायग्राम। अगर आपने वो वाली परफेक्शन अपने प्रैक्टिस में डेवलप कर ली, हु इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट यू? टाइम मैनेजमेंट हो गया, डायग्राम इंटीग्रेशन हो गया, मेंटल फ्रेम हो गया, कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? मार्क्स बिल्कुल आएंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा आंसर फ्रेम लेकर रट्टा मार लो, पहुंच जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये फॉल्स क्लेम होते हैं। हम आपको एक डायरेक्शन देते हैं, दैट इज द रीजन आई कॉल माय सेंटर डायरेक्शन। आपको उस डायरेक्शन पर वर्क करना है। द सक्सेसफुल एग्जांपल्स गिव्स अस यस दिस वाज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एवरी स्टूडेंट डोंट क्वालिफाई इन सिंगल अटेम्प्ट। हमारा भी कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहां हर साल हर पहली बार बैठा हुआ स्टूडेंट ब्यूरोक्रेसी में पहुंच जाता है। बिल्कुल नहीं, गलत है। कई स्टूडेंट 2 साल, तीसरे साल, चौथे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से भी तो हम लर्न कर रहे हैं ना।
कि किस रीजन से दे वर डूइंग वेरी वेल, तो क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर ईयर में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, व्हाट वाज द लूप होल्स, उन लूप होल्स को जज करके हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं. If I continue with the same case and I take up my block number next, that is 4, एपीजीन प्रोसेसेस की अगर बात करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से बहुत आराम से हो गया. एपीजीन प्रोसेसेस में यू नीड टू टॉक अबाउट ऑल ग्रेडेशनल प्रोसेसेस और फोर्सेस, एंड यू ऑल्सो टॉक अबाउट वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग. हो गया आपका पूरा सिलेबस. आप अपने सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं चल रहे. आप बोलोगे नहीं 2 टॉपिक तो रह गए, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी और आइसोस्टेसी आपने कहीं बताया नहीं. तो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी और आइसोस्टेसी विद जियो हाइड्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, हमने इसको 5th ब्लॉक बनाकर रखा. से दी साइकिल गोज लाइक दिस कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी के मंथ में 5 हफ्ता नहीं मिला हमें, तो हम अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी को रोप इन कर देते हैं, आइसोस्टेसी को रोप इन कर देते हैं विद कंसेप्ट लाइक आइसोस्टेसी कैन इजीली बी एडेड अप विद एनी ऑफ द ब्लॉक ऑफ द थियरीज एंड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इज अ डिफरेंट हेड. पर इससे बेनिफिट क्या हुआ समझने की कोशिश करो. इससे बेनिफिट क्या हुआ? पूरे साल भर की तैयारी कर रहे हो आपने सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप खुद पढ़ रहे हो तो आपके पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, तो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो सभी लोग पढ़ रहे हैं. आप किसी भी स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हो तो वो स्टडी मटेरियल सिर्फ आप तो रेफर नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफर कर रहे हैं. फिर ऐसा क्या हो कि आपका आंसर आपके कंपटीटर के आंसर से बेटर हो. सो अंडरस्टैंडिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच यू कंस्ट्रक्ट राइटिंग. पर जैसा हम हमेशा बोलते हैं, वंस यू हैव अंडरस्टूड द थिंग डजंट गारंटी कि आप लिख पाओ. लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लिखने की प्रैक्टिस के लिए CSTP से बढ़िया कोई प्रोग्राम है ही नहीं. ये इतना डिफाइंड और डेडिकेटेड है, और हम इसको पिछले साल से और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं कि आपको पता चले कि इसमें हम क्या ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन हम हमेशा बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़कर 7 से 8 हो सकते हैं पर हफ्ते, और उस पॉइंट पर इसको आप बहुत आराम से अपने लिए कस्टमाइज 300+ क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर सकते हो अपने स्टडी में. And that will make the difference, and that will make the difference because it is all done by me. And very clearly it is not just about I am a trained geographer, I have done my MPhil in geography, I have been into this field for more than 2 decades. So it is something that comes out from what can be justified as the most practical and most conducive way. So it definitely will help you out. So the sample case of geomorphology I think have given us understanding that we subdivide. Second topic that I have selected as a sample case, do not give me that clear cut division, but there also we can have the divide. So if I just try to take up some sample cases of division here, देख कर देखो perspectives in development of human geography के block 1 में आप पिकअप कर लो सिस्टम्स एनालिसिस. हम इसका कुछ रीऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, हम आपको एक सैंपल केस करके बता रहे हैं. सिस्टम्स एनालिसिस लेकर इसके साथ हम रेफरेंस ऑफ कल्चरल रीजन्स सिलेबस में लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम जब किसी ब्लॉक को प्रिपेयर करेंगे तो हम उसको उसके कंटेंट के साथ ऐड करेंगे. तो कल्चरल रीजन्स को ऐड कर लिया, और सेकेंड ब्लॉक में हम इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर ले हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट आउट pre-paradigm phase in geography, and mind it, pre-paradigm phase is related to pre-diagram. So आपने जैसे ही ये वाला ब्लॉक लिया, आपके कंट्रीब्यूशन की लिस्ट में ऑल द 4 पिलर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी आ जाएंगे. वरेनियस, कैंट, हमबोल्ट, रिटर. एंड माइंड इट, जब ये सारे स्कॉलर्स आ जाते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली बिगिन कर लेते हो, यहीं पर ही ऐड कर सकते हैं मैन एनवायरमेंट रिलेशन। जो आपका फर्स्ट प्रोमिनेंट पैराडाइम इन ज्योग्राफी है, उसका बिगिनिंग तो प्री पैराडाइम फेज में ही हो गया, because when I talk about all the contributors, whether it was Strabo, it was Ibn Khaldun, or it is the contribution that I see with scholars like Kant, the pillar of modern geography, or Unity in Diversity, Anthropocentric Determinism of Karl Ritter, they were the contributors who contributed when geography was in pre-paradigm phase. Mind it, when you take the preparation like this, systems analysis तो आपके model series laws and human geography में लिखा हुआ है. What is the benefit you are getting? You are creating out the base. और वो base create हो जाने के बाद आप simple सा head ले लो, हम इसी तरह से इसको divide करेंगे almost. अभी आपको एक dedicated plan out दिखाते हैं. So we take all the paradigms, because once I take Kunz paradigm, from the pre-paradigm phase to the professionalism to the first paradigm, man-environment relation, I have got a very defined video that is loaded on my YouTube channel in the Kunz paradigms. को जरूर देखो, एक आइडिया क्लियर होगा कि आप अपने ज्योग्राफिकल थॉट पे सिलेबस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. माइंडेड स्टूडेंट्स, जब तक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक उसका कोरिलेशन क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते. रैंडम बम्बार्डमेंट नहीं होता, ये है सिस्टम, ये है मॉडल, ये है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ऐसे नहीं होता. When I talk about the model based paradigm in geography, model based paradigm goes with positivism, goes with quantification and goes with the paradigms beyond as well. क्या behavioralism model based paradigm नहीं है? बिल्कुल है. So behavior study in geography has got model based paradigm. Humanism is not. Quantitative revolution is model based paradigm, but it is different from positivism. Neo-positivism of Schaffer is different from what has been approached as quantitative tradition. Ackerman, Berry, Chorley, Peter Haggett, David Harvey. जब तक आप फाउंडेशन नहीं क्रिएट करोगे, तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते. तो पिलर से पोल्स तक रन करने की जरूरत नहीं है. आप सुदीप्ता अधिकारी पढ़ रहे हो, माजिद हुसैन पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आपने क्लास की हेल्प नहीं ली, कोई बात नहीं. आप जिस भी कंटेंट बुक से पढ़ रहे हो, उस कंटेंट बुक से आपने इंफॉर्मेशन तो गैदर करी है. उस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरह से क्वालिटी आंसर में लिखना है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पर हम अपना इंटेलेक्चुअल लेवल शो करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं. टीचर वही होता है जो हर एस्पिरेंट के लेवल तक पहुंचे. लेवल का मतलब लो हाई नहीं है. किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी टॉपिक का एक स्टैंडर्ड गोल पोस्ट तो होता नहीं कि दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. भाई जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो हम कैसे सेटअप कर दें कि ये डिफिकल्ट है और ये आसान है? नहीं होता ऐसा. हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट अपने आप में एक अलग हेजिटेशन और एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है. हमारा कोशिश यही रहता है कि हम हर इंडिविजुअल के जो हेजिटेशन है उसको ओवरकम करने में हेल्प करें, और जो उनका कॉन्फिडेंस है उसको इतना बूस्टअप कर दे दैट एवरी वन ऑफ यू डेली रिपीट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, आई कैन, आई विल. ये हमारा पर्पस है. आपको बस यही चीज समझनी है कि मुझे अपना स्ट्रैटेजी कैसे चार्ट आउट करना है. सबके लिए कॉमन पाथ है, सबके लिए कॉमन सिलेबस है, लेकिन हम सबकी अलग अलग वीकनेस, हेजिटेशन, हम सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ, हम सबकी अलग अलग कैपेसिटी है. हम सब में कुछ बहुत अच्छे डायग्राम बनाते होंगे, कुछ की वोकैबुलरी इतनी बढ़िया है कि उनका आंसर ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पब्लिकेशन. हम में से कुछ लैंग्वेज पर इतना कंट्रोल नहीं लगते, बट वी गेट टू राइट अ लॉजिकल आंसर. ज्योग्राफी का ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है बच्चों. जब आप ज्योग्राफी का आंसर लिखते हो तो आपको किसी भी तरह का, जिसको कहते हैं ना फ्लारी लैंग्वेज, उसकी जरूरत नहीं है. सिंपल कम्युनिकेट, बस कोशिश क्या करनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स डालने चाहिए एट द अप्रोप्रिएट प्लेस. केस स्टडीज डालने चाहिए टू प्रूव योर पॉइंट. वो मेक और ब्रेक करता है आंसर.
जब आपने पैराडाइम्स पिकअप कर लिया, आपका एक मेजर ब्लॉक ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। पैराडाइम्स में हम नॉर्मली किस किस को ले लेते हैं? मैन एनवायरमेंट रिलेशन से कैरी फॉरवर्ड करें तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन विद लोकेशनल एनालिसिस, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ हम क्या ले लेते हैं? बिहेवियर स्टडी। फिर आप ले लो ह्यूमनिज्म, फिर आप ले लो रेडिकलिज्म। तो इफ आई बिलीव दैट आई एम लेफ्ट आउट विद 4 वीक्स है, तो चौथा ब्लॉक मेरे ख्याल से अपने आप बहुत आराम से आ जाएगा ना। दैट सिस्टम्स तो आपने यहाँ ले लिया, आप यहाँ टाइप्स ऑफ मॉडल्स की स्टडी कर लो। You take the study of regional synthesis with areal differentiation. सिलेबस शुरू तो यहीं पर ही हो। और जब आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो ना, तो आप ऐसे नहीं प्रिपेयर करते हो कि एरियल डिफरेंशिएशन वाज द टर्म दैट वाज कॉइन्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय हार्टशॉ। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। आपको क्या पता करना है कि भाई एरियल डिफरेंशिएशन मेरी समझ में तो आ गया that it is about the heterogeneity between the two areas. तो उसको मैं एक क्वालिटी आंसर में कैसे कार्व आउट करूं? How do I create out a logical sense of marks fetching answer out of it, है ना? उसको करने के लिए मैं सुदीप्ता अधिकारी की हेल्प ले रही हूँ, या मैं माजिद हुसैन की हेल्प ले रही हूँ, या मैं किसी नोट्स की हेल्प ले रही हूँ, व्हाट्सएवर केस। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, लिखें कैसे, एग्जाम्पल्स कैसे साइट करें? Areal differentiation, spatial organization of society and societal organization of space. Spatial organization of society is radicalism and societal organization of space is humanism. Mind it, दोनों के दोनों areal differentiation की बात कर रहे हैं। कोई बताता है ये आपको? कोई नहीं बताता, क्योंकि बुक में लिखा हुआ नहीं है। आपको क्या समझना है कि हम जो रैंडम इंफॉर्मेशन एनकाउंटर करते हैं ना, उन रैंडम इंफॉर्मेशन को हम कितनी आसानी से इनकलकेट करें। इनकलकेट करने का मतलब क्या होता है? जब आपको बार बार हम लगातार ये बात बोलते हैं और उसी के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल CSTP आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाता है कि आप हर टॉपिक का, हमने आपके सामने 2 केसेस प्रेजेंट करे, दोनों ही केसेस को अगर आप लेकर देखो तो आपने हर टॉपिक के सब टॉपिक्स बना लिए। हर हफ्ते आप उस सब टॉपिक को तैयार कर रहे हो, तैयार करके लिख रहे हो, लिख कर इवैल्यूएशन ले रहे हो कि मैंने तो मेरी तरफ से फुल फ्लेजेड लिखा, पर मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो आपके पास रीजन भी आएगा कि मार्क्स क्यों नहीं मिले। लिखना ये चाहिए था, ये ऐसे चाहिए था, आपने ऐसे लिखा इसलिए मार्क्स नहीं मिले। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर मिल गए, ऐसा भी होता है। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आपने अच्छा लिखा और आपने अल्टीमेटली अच्छा लिखा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट charting out, specifying what is your hesitation, what is your difficult point, what is the points that is so strong in you कि अगर उसको आपने हाईलाइट कर दिया या वर्क अपॉन कर लिया। और जो इसका सबसे बॉटम लाइन है, फेदर इन द कैप, आई कॉल इट दैट, वो ये है कि हमारा सिलेबस, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस जनरल स्टडीज से सबसे ज्यादा ओवरलैप होता है। इतनी बार ये बात कही गई है कि मेरे ख्याल से मुझे टॉपिक्स गिनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हम क्या करने में आपकी हेल्प करेंगे कि जैसे हमने कोई टॉपिक पिकअप करा, जियोमॉर्फोलॉजी हमारा सैंपल केस था, इसी को ले लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते समय आप वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक तो जरूर पढ़ रहे हो। जब आप वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक पढ़ रहे हो तो क्या आप अपने जनरल स्टडीज पेपर 1 का एक ब्लॉक प्रिपेयर नहीं कर रहे? जहां पर जीएस का ओवरलैप, वहां पर हम जीएस के ओवरलैप का रिमाइंडर अपने डिस्कशन में, अपने फीडबैक में, कि इसको आप इस तरह से अगर लिखें तो यू विल बी फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो। अगर आप इस अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करते हो इन अ लॉन्ग 1 ईयर पर्सपेक्टिव, माइंडेड, इस बार आपने प्रीलिम्स नहीं दिया या इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं होता, जो भी केस है, आपने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना है। आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इतने फुल प्रूफ तैयार हो जाते हो कि आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं with what is pertaining to geography for your UPSC examination।
आपका ऑप्शनल और आपका 350 to 360 मार्क्स ऑफ जनरल स्टडीज। ये है पर्पस CSTP। लिंक डिटेल, एक स्टडी प्लान, एक सैंपल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं लिंक में, उसको जरूर देखिए। डिटेल्स के लिए ही ये वीडियो जनरेट करी है, बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। सो एज आई ऑलवेज से, बिलीव इन योरसेल्फ। हम सबके अंदर कुछ खूबी है, हम सबके अंदर कुछ कमी है। आपको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है तो आपको सबसे पहले किसी और को देखकर इंस्पायर तो जरूर होना चाहिए, बट किसी और को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। आपको अपने अंदर बिलीव रखना है दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल विल डू इट। You have to just be a consistent, intelligent, hard worker. Consistent, intelligent, hard worker. Bookworm नहीं बनना, intelligent thinking लेना। एग्जामिनर थोड़ी ना ज्योग्राफी स्कॉलर्स ढूंढ रहा है। स्कॉलर बनना है तो PhD करो ज्योग्राफी। एग्जामिनर ने आपको कुछ चैलेंज थ्रो करने हैं, वो चैलेंज थ्रो करने के लिए कुछ तो सब्जेक्ट मैटर चाहिए, तो आपने सेलेक्ट करा ज्योग्राफी, तो आपके सामने चैलेंज आएंगे एज ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक। और जो कर रहे हैं क्लियर, वो क्या मेरे से अलग है? नहीं है। जब वो क्लियर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये वाला इंस्पिरेशन अपने अंदर लाओ, और कहीं से भी ये चीज को फील नहीं करना दैट आई कैन नॉट डू इट, यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। I hope I have made the points of CSTP very clear, what makes it different from the regular test series program. Thank you for watching. Happy learning. Bye-bye from my side. Take care.